Hi friends, hello student and namaste all of you. Welcome to my YouTube channel Parth Classes. Please like and subscribe my channel. जैसा कि पिछली वीडियो में पार्थ क्लासेस पर मैंने क्लास 12th की इंग्लिश पोइट्री पढ़ाई थी. In back videos on Parth classes, I taught English poetry of class 12th. लेकिन अब मैं इंग्लिश स्पीकिंग शुरू करने जा रहा हूँ. बट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश स्पीकिंग. मैं इंग्लिश स्पीकिंग पर 90 वीडियो बनाऊंगा. आई शैल मेक 90 वीडियोज ऑन इंग्लिश स्पीकिंग. मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को 4 भागों में बांटा है. आई हैव डिवाइडेड 4 पार्ट्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स. नंबर 1, टेंस. माय सेकंड पार्ट, मॉडल एंड यूजेस. थर्ड पार्ट, एक्टिव पैसिव एंड नरेशन. माय फोर्थ पार्ट, वोकैबुलरी. I think and I suppose these videos will be very helpful for you. तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग का पहला पार्ट. Then let's start the first part of English speaking. I have given, जो मैंने दिया है. As you know, tense. There are 3 kinds of tense. टेंस 3 प्रकार के होते हैं. प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल. पास्ट टेंस, भूतकाल. फ्यूचर टेंस, भविष्य काल. और प्रत्येक टेंस को 4 भागों में विभाजित भी किया गया है. And each tense are divided in 4 parts. Number 1, indefinite. Number 2, continuous. Number 3, perfect. And number 4, perfect continuous. ये चारों भाग मिलकर 12 टेंस का निर्माण करते हैं. To meet of these steps, these parts make 12 tense. So I count serial by serial. Present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense, future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. And these serials are also days. मतलब ये जो सीरियल्स हैं वो दिन भी हैं, क्योंकि इन सीरियल को जो 12 आपके टेंस हैं वो मैं 12 दिन के ही अंदर खत्म करूंगा. ओके. एंड द सेकंड पार्ट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, आई हैव गिवन मॉडल्स and uses. Then I count these also. Models. Present simple 14 नंबर पर है. 15 पर past simple. 16 future simple. 17 present tense. 18
पास्ट टेंस करंट एक्शन में और प्रेजेंट टेंस भी करंट एक्शन में। प्रेजेंट टेंस हेल्पलेसनेस, पास्ट टेंस हेल्पलेसनेस, फ्यूचर टेंस हेल्पलेसनेस। प्रेजेंट टेंस कंबाइनेशन, पास्ट टेंस कंबाइनेशन, फ्यूचर टेंस कंबाइनेशन। 25 पर अबाउट टू, 26 पर यूज ऑफ हु एज ए सब्जेक्ट, 27 यूज ऑफ हाउ टू, 28 यूज ऑफ नेवर, 29 प्रीपोजिशन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, 30 पर यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, 31 पर वुड लाइक टू अथवा वुड लव टू, 32 स्पेशल यूज ऑफ शुड, 33 यूज ऑफ हैज हैव हैड, 34 इंपरेटिव सेंटेंस, 35 यूजेस ऑफ लेट, 36 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, 37 यूज्ड टू, 38 यूज ऑफ एवर, 39 कीप, 40 use of it, 41 use of their, 42 use of which and whose, 43 use of able to, unable to, 44 supposed to, 45 feel like, 46 being, 47 OF, 48 OFF, 49 after having, 50 must be, must have, 51 get, 52 causative verb, 53 verb plus would, 54 had plus would have, 55 do अथवा does, 56 to be, 57 a an and the, 58 shall, 59 may, might and might have, 60 correlatives. And the third part of English speaking I have given active, passive and narration. 61 active and passive voice, 62 present indefinite passive voice, 63 present continuous passive voice, 64 present perfect passive voice, 65 past indefinite passive voice, 66 past continuous passive voice, 67 past perfect passive voice, 68 future indefinite passive voice, 69 future perfect passive voice, 70 modal passive voice, 71 passive voice with about to used to be, 72 passive voice with imperative, 73 passive voice with led, 74 narration rule first, 75 narration rule second, 76 narration rule third, 77 narration rule fourth, 78 narration rule 5, 79 narrations rule 6, 80 narration rule 7, 81 narration rule 8, 82 narration rule 9, 83 narration rule 10, 84 dialogue. And the fourth part of English speaking, vocabulary. In vocabulary part I count 85 proverbs, 86 verbs table, 87 some more verbs for practice, 88 word meaning, 89 synonyms, 90 opposite words and day-to-day conversation, as well as some important point we should learn.
इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं, महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं जिन्हें हमें याद कर लेना चाहिए। स्पोकन इंग्लिश सम शॉर्टकट्स एग्जाम्पल्स, जैसे डू प्लस नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में डोंट बोलते हैं, डज प्लस नॉट को डजंट बोलते हैं, इज प्लस नॉट को इजंट बोलते हैं, एम प्लस नॉट को नो चेंज, आर प्लस नॉट को आरंट, हैज प्लस नॉट को हैजंट, हैव प्लस नॉट को हैवंट, हैड प्लस नॉट को हैडंट, डिड प्लस नॉट को डिडंट, वाज प्लस नॉट को वाजंट, वर प्लस नॉट को वरेंट, विल प्लस नॉट को वॉन्ट, कैन प्लस नॉट को कांट, कुड प्लस नॉट को कुडंट, शुड प्लस नॉट को शुडंट, मस्ट प्लस नॉट को नो चेंज, मे प्लस नॉट को नो चेंज और माइट प्लस नॉट को नो चेंज। कम ऑन WH फैमिली, वाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, हु कौन, हुज किसका, विच कौन सा, हुम किसे, हाउ कैसे। वी शुड आल्सो लर्न प्रोनाउन, फुल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, हाफ प्रोनाउन। फुल प्रोनाउन आई, पजेसिव माई, हाफ प्रोनाउन मी। यू फुल प्रोनाउन, पजेसिव योर, हाफ यू। फुल प्रोनाउन वी, पजेसिव अवर, हाफ अस। फुल प्रोनाउन दे, पजेसिव दियर, हाफ देम। फुल प्रोनाउन ही, पजेसिव हिज, हाफ हिम। फुल प्रोनाउन सी, पजेसिव हर, हाफ हर। फुल प्रोनाउन इट, पजेसिव इट्स, हाफ प्रोनाउन इट। नेक्स्ट, वी शुड नो सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट ही मेल के लिए, सी फीमेल के लिए, इट बेजनदार वस्तुओं के लिए, कोई व्यक्ति राम हो सकता है, सीता स्त्री हो सकती है, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट आई मैं, वी हम, यू तुम, दे वे, बॉयज लड़के, ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं। वी शुड आल्सो लर्न फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कुछ मैंने फॉर्म्स लिखी हैं, हमको अलग से भी याद करनी होंगी, लेकिन मैंने कुछ फॉर्म बताई हैं लिखे कि कैसे फॉर्म में होती हैं। जैसे पहली है एवास, नीचा दिखाना, सेकंड फॉर्म एवेस्ट, थर्ड फॉर्म एवर्शन। बीट, सेकंड फॉर्म बैट, थर्ड फॉर्म बीटन। कैच, सेकंड फॉर्म कॉट, थर्ड फॉर्म कॉट। डिग, सेकंड फॉर्म डग, थर्ड फॉर्म डग। ईट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन। फाल, सेकंड फॉर्म फेल, थर्ड फॉर्म फालन। गो, सेकंड फॉर्म बेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। हेल्प, सेकंड फॉर्म हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। Then let's start first day and first topic from tense, present indefinite tense। जैसा कि इसकी हमने आइडेंटिटी दी है, पहचान दी है, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। हमने फॉर्मूला बेस इंग्लिश स्पीकिंग को दर्शाया है।
हम इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमें ग्रामर नहीं सीखनी है, हमको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, हमको केवल बोलना है, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। सो वी कंसंट्रेट ओनली ऑन स्पीकिंग। फॉर्मूला बेस पे हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सिखाने का प्रयत्न किया है, एफर्ट किया है। तो जैसा कि देखते हैं फॉर्मूला में हमारा पॉजिटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस अथवा ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो जैसा रूल है वैसा ही रहेगा, लेकिन यदि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव हमने 6 रूल को लिखा है। पॉजिटिव सकारात्मक होता है, नेगेटिव नकारात्मक होता है, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक होता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक होता है। WH फैमिली से आता है, बीच में मिलते हैं ये सब। WH नेगेटिव का अर्थ है WH होगा और नकारात्मक होगा। तो नेगेटिव पर बढ़ते हैं। सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा तो डजंट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर बहुवचन होगा, प्लूरल होगा तो डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आते हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक में। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट है डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH है तो WH प्लस डज, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो WH प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH नेगेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो WH प्लस डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट है WH नेगेटिव में तो डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि हमने आपको एक वाक्य दिया है सिंगुलर सब्जेक्ट का, जिसको हम 6 तरीके से बनाते हैं। जैसा कि ऊपर आपके 6 रूल्स हैं, तो इसको बनाएंगे भी हम 6 तरीके से ही। जैसा कि हमने पॉजिटिव किसी वाक्य को लिया है सिंगुलर में, वह अंग्रेजी बोलता है। नेगेटिव होगा वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। इंटेरोगेटिव होगा क्या वह अंग्रेजी बोलता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। WH होगा वह अंग्रेजी क्यों बोलता है। WH नेगेटिव होगा वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता है। अब इनकी इंग्लिश बनाते हैं, ठीक है। ऊपर जो हमने रूल्स लिखे हैं उन्हीं के अनुसार। तो ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है। वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। ही डजेंट स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोलता है। डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। डजेंट ही स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों बोलता है। वाई डज ही स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता है। वाई डजेंट ही स्पीक इंग्लिश। ठीक है, इनकी इंग्लिश हमने बना दी। ऐसे ही हम एक कोई प्लूरल सब्जेक्ट देखते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में जैसा कि इसको भी हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है आपका मैं पाठ रटता हूँ। नेगेटिव है मैं पाठ नहीं रटता हूँ। इंटेरोगेटिव है क्या मैं पाठ रटता हूँ। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव है क्या मैं पाठ नहीं रटता हूँ। WH है मैं पाठ क्यों रटता हूँ। और 6 है WH नेगेटिव मैं पाठ क्यों नहीं रटता हूँ। इसमें प्लूरल वाला रूल लगाएंगे हम। तो मैं पाठ रटता हूँ, आई क्रैम द लेसन। रटना की अंग्रेजी क्रैम होती है। मैं पाठ नहीं रटता हूँ, आई डोंट क्रैम द लेसन। क्या मैं पाठ रटता हूँ, डू आई क्रैम द लेसन। क्या मैं पाठ नहीं रटता हूँ, डोंट आई क्रैम द लेसन।
मैं पाठ क्यों रटता हूँ, वाई डू आई क्रैम द लेसन, मैं पाठ क्यों नहीं रटता हूँ, वाई डोंट आई क्रैम द लेसन। प्रैक्टिस करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कुछ हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के ऊपर हमने वाक्य दिए हैं, 3 वाक्य लिए हैं, तो इन्हीं को हम 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH और WH नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से हम बोलना सीखेंगे। हमको ग्रामर नहीं सीखनी है, हमको केवल बोलना सीखना है। ठीक है, हमने रूल भी आपको लिखा दिए, 6 पार्ट में हमने रूल लिखवाए हैं और यूज़ भी करना सिखा दिया है। अब केवल हमको प्रैक्टिस करनी है, बोलना है। आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं, इनके अलावा भी और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे पहला है, वह खाना बनाती है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सी कुक्स द फूड, वह खाना नहीं बनाती है। कैसे बोलेंगे, सी डजंट कुक द फूड, क्या वह खाना पकाती है, क्या वह खाना बनाती है। डज सी कुक द फूड, क्या वह खाना नहीं बनाती है। डजंट सी कुक द फूड, वह खाना क्यों बनाती है। वाई डज सी कुक द फूड, वह खाना क्यों नहीं बनाती है। वाई डजंट सी कुक द फूड। रीमा किताब पढ़ती है, तो रीमा रीड्स द बुक, रीमा किताब नहीं पढ़ती है। रीमा डजंट रीड द बुक, क्या रीमा किताब पढ़ती है। डज रीमा रीड द बुक, क्या रीमा किताब नहीं पढ़ती है। डजंट रीमा रीड द बुक, रीमा किताब क्यों पढ़ती है। वाई डज रीमा रीड द बुक, रीमा किताब क्यों नहीं पढ़ती है, तो वाई डजंट रीमा रीड द बुक। मेरे पिताजी मुझे चाहते हैं, माई फादर वांट्स मी, मेरे पिताजी मुझे नहीं चाहते हैं। माई फादर डजंट वांट मी, क्या मेरे पिताजी मुझे चाहते हैं। डज माई फादर वांट मी, क्या मेरे पिताजी मुझे नहीं चाहते हैं। डजंट माई फादर वांट मी, मेरे पिताजी मुझे क्यों चाहते हैं। वाई डज माई फादर वांट मी, मेरे पिताजी मुझे क्यों नहीं चाहते हैं। वाई डजंट माई फादर वांट मी। इस तरीके से हमने बोलना सीखा। ठीक है, हम एक ही वाक्य को 6 तरीके से जब बोलना सीखेंगे तो हमारी फ्लुएंसी भी बढ़ेगी और थोड़ा हमको हिंदी से इंग्लिश जब हम बोलेंगे तो वो हमारी प्रैक्टिस में आ जाएगी। हम गांव जाते हैं, अब प्रैक्टिस विद प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे हम गांव जाते हैं। वी गो टू प्लेस, हम गांव नहीं जाते हैं। वी डोंट गो टू प्लेस, क्या हम गांव जाते हैं। डू वी गो टू प्लेस, क्या हम गांव नहीं जाते हैं। डोंट वी गो टू प्लेस, हम गांव क्यों जाते हैं। वाई डू वी गो टू प्लेस, हम गांव क्यों नहीं जाते हैं। वाई डोंट वी गो टू प्लेस। तुम गीत गाते हो, यू सिंग ए सॉन्ग, तुम गीत नहीं गाते हो। यू डोंट सिंग ए सॉन्ग, क्या तुम गीत गाते हो। डू यू सिंग ए सॉन्ग, क्या तुम गीत नहीं गाते हो। डोंट यू सिंग ए सॉन्ग, तुम गीत क्यों गाते हो। वाई डू यू सिंग ए सॉन्ग, तुम गीत क्यों नहीं गाते हो। वाई डोंट यू सिंग ए सॉन्ग। वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। दे डोंट प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। डोंट दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट क्यों खेलते हैं। वाई डू दे प्ले क्रिकेट, और वे क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं। वाई डोंट दे प्ले क्रिकेट। इसी प्रकार आप और भी 10 टेंस सिंगुलर और प्लूरल लिख सकते हैं। 5 टेंस आप कोई सी भी सरल लिख सकते हैं सिंगुलर पर और 5 ही लिख सकते हैं आप प्लूरल पर। तो इस तरीके से आपके 10 टेंस हो जाएंगे और 10 टेंस को हम 6 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो 60 टेंस हो जाएंगे। और जब 60 टेंस को हम इसी तरीके से बोलेंगे तो प्रेजेंट टेंस हमारा क्लियर होगा, अर्थात हम प्रेजेंट में बोलना सीख जाएंगे, इंडेफिनिट में हम बोलना सीख जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा अभियान ऐसे ही आगे चलता रहेगा। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूअस के द्वारा बुलवाना सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।